Assalamu alaikum students. In the previous lecture, we have started the Fourier transform, and we have studied the three cases of Fourier transform, three forms basically of Fourier transform: exponential and polar and trigonometric. Now, today we will discuss the analysis of Fourier transform. Analysis of a non-periodic analysis of a non-periodic function. एनालिसिस ऑफ ए नॉन पीरियडिक फंक्शन, इसमें जो हम इंटरवल ले लेंगे दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स ओवरऑल एंटायर इंटरवल में हम इसको एनालाइज करेंगे. तो वी कैन से दैट analysis of a non-periodic function from minus infinity to plus infinity or entire interval, we know that this is an entire interval. So we have here the continuous, because we have a signal of continuous type, continuous time Fourier transform, continuous time Fourier transform. तो we will analyze this CTFT, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CTFT. we will analyze this. ठीक है. सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग दिस, वी नो दैट अगर हमारे पास कोई नॉन पीरियडिक सिग्नल है, वी एज्यूम दैट एज अ लिमिटिंग केस ऑफ ए पीरियडिक सिग्नल. That means if we have a non-periodic signal and we assume that as a limiting case of a periodic signal where the period of the signal approaches to infinity. For example, अगर मेरे पास signal है non-periodic signal, we say that we are approaching that, we are assuming that signal as a limiting case of the periodic signal when t approaches to infinity. When t approaches to infinity, that means when the time period of the signal approaches to infinity. So we can say this approach to develop the frequency, the approach to develop that frequency domain representation of non-periodic signals over this entire interval. So we can give the name continuous time Fourier transform. अब हमारे पास हम लेट्स वी एज्यूम द सिग्नल x ऑफ t, कंटिन्यूस सिग्नल एक मेरे पास है x ऑफ t. ठीक है. x ऑफ t का मैं टाइम पीरियड ले रहा हूँ, लेट्स सपोज कैपिटल T. तो उसका मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है. बेसिकली द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज जो है उससे हम इसकी एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, let this function be c of n, and this is c of n versus omega naught. Omega naught here is a fundamental frequency. For example, this is starting from the 0 omega naught, then twice omega. So we will say, for example, 0 twice omega naught, 4 times omega naught, 6 times omega naught. And similarly in the negative side, minus 2 times omega naught, minus 4 times omega naught, minus 6 times omega naught. These are my values of omega. Alternate values, even values हमने ले लिए. तो इन even values को हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास और भी है वैल्यूज, इन दोनों ये जो फॉर एग्जाम्पल 0 to ओमेगा, इसमें और वैल्यूज होंगे. लेट दैट वैल्यूज बी डिनोटेड लाइक दिस. तो इनको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली इन दोनों के बीच में और वैल्यूज होंगे, देन दिस, देन दिस. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे भी सिमिलरली नेगेटिव साइड में इसके वैल्यूज होंगे. लेट्स ड्रॉ दिस a wave graph. दिस विल लाइक दिस. ठीक है. तो ये मेरा जो यहाँ पे फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल this is Cn versus omega naught. And now see, take this any sample from these. Let us take this sample. इसमें जो ये गैप है, this is called omega v, and omega v is 2 pi by t. And let us say this is delta omega. That means अगर ओमेगा आपका सारा यहाँ पे Cn versus omega है, तो आपका जो डेल्टा ओमेगा, this is the small change in omega. Let us say that, let us assume it, that omega v is equal to 2 pi by t, that is equal to delta omega
लेट अस से, ठीक है। नाउ we will consider a signal x of t, consider a signal x of t which is periodic in nature and having a time period, जिसका time period हमारे पास क्या है, capital T. From the exponential Fourier series type we have जो x of t है, exponential Fourier फॉर्म जब हमने पढ़ी थी तो तब हमने वहाँ पे लिखा था x of n, it goes from minus infinity to plus infinity because we are discussing it from entire interval. C of n जो मेरा यहाँ पे ये फंक्शन है, C of n e दी पावर j n ओमेगा नॉट n t, सॉरी ओमेगा नॉट t, तो ये हमने जब फोरियर सीरीज का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा था तो ये इक्वेशन हमने वहाँ पे भी डिराइव किया था। अब हम क्या करेंगे, इसी फोरियर जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज है इसी से हम एनालाइज करेंगे सी टी एफ टी को। हियर जो आपका ओमेगा नॉट है, जो ये ओमेगा नॉट है, वी नो दैट ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाई टी, इट इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ठीक है। अब सबसे पहले इस सी एन को देख लेते हैं, व्हाट इज दिस सी एन। तो सी एन एक फंक्शन है दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ टी ई दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, e the power minus j omega naught dt. What will be the limits? It will be minus t by 2 to plus t by 2. ये हमने वहाँ पे भी सॉल्व किया था जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शन पढ़ा था। तो ये एक मैंने जो ये ग्राफ बनाया था, बेसिकली दिस इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इट इज टिपिकल टाइप ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो सी एन है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स ऑफ टी ई दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। तो ये मेरा सी एन है, तो आई कैन पुट द वैल्यूज हेयर क्योंकि सी एन की वैल्यू मेरे पास आ गई। नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस सी एन वी नो दैट हमने अभी जो फंक्शन लिखा था दैट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और इसको मैंने लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, लेट अस सी, लेट्स एज्यूम इट, लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन डेल्टा। तो अगर हम यहाँ पे इसका दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 1 बाई टी इज इक्वल टू शाबाश डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 पाई को इधर डिवाइड किया, ठीक है। नाउ वी नो दैट अब जो हमारे पास डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई आ गया दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी। इस वी कैन से सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू 1 बाई टी इन द इक्वेशन, जो पीछे हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज दिस ओमेगा नॉट की वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 बाई टी की वैल्यू है दैट इज हियर इट इज टी एन, तो वहाँ पे भी हम इसको टी एन लिख सकते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू। तो वी कैन से दैट सब ऐसे लिखेंगे, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 1 बाई टी इन इक्वेशन फर्स्ट, in equation first we have x of t is equal to 1 by t था, तो 1 by t का वैल्यू कितना आ जाएगा, शाबाश 1 upon 2 pi n, 1 upon 2 pi n, summation n goes from minus infinity to plus infinity c of n e the power j n omega naught t into delta omega, ठीक है। क्योंकि डेल्टा ओमेगा यहाँ पे था तो वो मैंने अंदर लिया बिकॉज यहाँ पे भी ओमेगा है, इसके साथ इसको अंदर हम बाद में इंटीग्रल कर सकते हैं। नाउ हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने बोला था एक नॉन पीरियडिक फंक्शन है हमारे पास, वी आर कंसिडरिंग दैट नॉन पीरियडिक फंक्शन एज अ लिमिटिंग केस। अब उसको हम तब लिमिटिंग केस मतलब एज्यूम करते हैं व्हेन आवर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन आवर कैपिटल टी जो मेरा फंडामेंटल टाइम है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मेरा कैपिटल टी जो है इफ इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी नो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली सॉल्व दैट कि जो डेल्टा ओमेगा है इट विल टेंड टू जीरो, जो मेरा शाबाश इफ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा ओमेगा टेंड्स टू जीरो। हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर मेरा इन्फिनिटी हो गया ये 1 बाई इन्फिनिटी इज शाबाश 1 बाई इन्फिनिटी इज 1 बाई इन्फिनिटी, देखो आपके पास 1 वैल्यू है, इन्फिनिटी से डिवाइड करो दैट मीन्स इक्वल टू जीरो, तो ये सारा जीरो के बराबर आ जाएगा अगर आपका टी इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग केस। this case we have approached we have a non-periodic function and we are considering that as a
लिमिटिंग केस ऑफ द पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। नाउ आपके पास जब t इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका डेल्टा ओमेगा भी डेल्टा ओमेगा जीरो की तरफ जा रहा है। दिस मीन्स दैट द डिस्क्रीट लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल मर्ज। जो हमारे पास इसमें डिस्क्रीट लाइंस हैं, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाया था, दीज लाइंस विल मर्ज टू फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करते हैं इसके बाद, क्योंकि ये जो डिस्क्रीट लाइंस हैं ये अब मर्ज हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट द इन्फिनिट सम इन इक्वेशन इन द इक्वेशन, जो इन्फिनिट सम है यहाँ पे इन दिस इक्वेशन, वी कैन सम दिस इज एन ऑर्डिनरी इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी इंटीग्रल। नाउ वी हैव टू डिफाइन द cn। cn को हमने ऐसे डिफाइन करना, वी हैव टू डिफाइन द cn एज एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज rather than rather than for integral multiple of omega naught। तो वी नो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो वी कैन से द इंटीग्रल ओवर एन हैज अ सिग्निफिकेंस नाउ। We can say the integral over n has now the significance in the case when t tends to infinity. So cn becomes, when t tends to infinity, cn becomes continuous type. cn becomes continuous function, that means it becomes x of omega. cn becomes a continuous function and cn tends to x of omega. जो cn है आपका ये x of omega बन जाएगा, because हमने इसको शाबाश we have to define it for all the frequencies. Now x of omega, cn की वैल्यू x of omega बन गई, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, शाबाश, cn इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x of t e दी पावर माइनस j omega t into dt। दिस इज x of omega। नाउ फ्रीक्वेंसी डोमेन कम्स हियर, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, लेट इट बी, इट इज इक्वेशन थर्ड। तो जो फोरियर सीरीज है हमारे पास पीरियडिक फंक्शन का, नाउ दैट बिकेम द फोरियर इंटीग्रल फॉर नॉन पीरियडिक फंक्शन। जो मेरे पास पहले इक्वेशन में फोरियर सीरीज था पीरियडिक फंक्शन का, दैट बिकेम नाउ द फोरियर इंटीग्रल फॉर नॉन पीरियडिक फंक्शन ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आई कैन राइट हियर एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी e दी पावर माइनस j ओमेगा t dt। इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं, बिकॉज दिस नाउ बिकेम द फोरियर इंटीग्रल ऑफ नॉन पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन बना, दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा, शाबाश, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट बिकम्स एक्स ऑफ टी e दी पावर माइनस j ओमेगा t dt, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन, let it जो equation, let it be equation 4। this equation is very popularly known as Fourier transform of non-periodic function, and इसको हम denote कैसे करेंगे, f of x of t, that means Fourier transform of x of t, it is equal to x of omega and minus infinity to plus infinity x of t e the power minus j omega t dt। that means जो आपके पास ये equation आ गई, x of omega is this is equal to minus infinity to this, and ये आपका जो बन गया, this now became the Fourier transform equation, ठीक है, Fourier transform equation। इसको आप दूसरे एंगल से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर आपने when we do the Fourier transform of x of t, it becomes x of omega, that means x of t को जब हम Fourier transform लेते हैं तो ये x of omega बन जाएगा Fourier transform के अंदर, ठीक है। that means we have changed from time domain to frequency domain, ठीक है। Now we have also, this is the basic function of the Fourier, this is the basic equation, or we can say the main equation we got the for the Fourier transform। similarly we can have a Fourier in inverse Fourier transform here। तो इनवर्स फोरियर भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। इनवर्स कैसे आएगा, f ऑफ, शाबाश, f इनवर्स ऑफ x ऑफ ओमेगा, f इनवर्स ऑफ x ऑफ ओमेगा। तो जब अगर मैं इसका इनवर्स ले लूंगा, इट विल बिकम, शाबाश, it will become x of t, it will become x of t। now आपके पास जो है, it will become x of t, and x of t is basically the f inverse of x of omega। it will become, shabash, 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity x of omega e the power j omega t plus j omega t dt, ठीक है।
तो यू कैन राइट हियर एक्स ऑफ टी जो आपके पास है इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, शाबाश, x of t, or we can say x of t, x of omega, or we can say x of f, x of f e the power j 2 pi f t, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू f डाल दी, ओमेगा की वैल्यू हमने 2 पाई लिखनी है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई एफ टी इंटू डी एफ, अगर इन टर्म्स ऑफ f ले लेंगे तो आपका इन्वर्स भी आ गया और आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म था। इसके बाद हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से होती है, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट कंडीशन, शाबाश, वी नो दैट फ्रॉम द डायरेक्टलेट्स कंडीशंस, जो हमने पहले जब सिग्नल सिस्टम उठाया था तब हमने डायरेक्टलेट्स के 2-3 रूल पढ़े थे। सिमिलरली वो कंडीशंस हम यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट मीन्स वो कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई हो सकते हैं। डायरेक्टलेट्स जो हमने पहले पढ़ा था, डायरेक्टलेट्स कंडीशंस, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे भी एक्स ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी पे हम उसको मतलब सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो that means it is possible to obtain the Fourier transform of x of t when we use this directly condition, ठीक है, ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारे पास पहली कंडीशन है, ओवर एंटायर इंटरवल। तो सबसे पहले इसमें पहली कंडीशन क्या है, शाबाश, द फंक्शन एक्स ऑफ टी शुड बी सिंगल वैल्यूड, जो एक्स ऑफ टी है इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड in any finite interval time period t, in any finite interval time interval t, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपके पास जो एक्स ऑफ टी है दिस शुड बी सिंगल वैल्यूड, डबल वैल्यूड नहीं, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दैट मीन्स इधर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा जो है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जो होनी चाहिए दैट शुड बी फाइनाइट, दैट मीन्स इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन इंटरवल जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, इन द इंटरवल टी। थर्ड कंडीशन क्या है, जो एक्स ऑफ टी है इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन, तो ये एब्सोल्यूट इंटीग्रल फंक्शन को फॉलो करना चाहिए, एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल फंक्शन, एक्स ऑफ टी शुड बी इंटीग्रेबल फंक्शन, एक्स ऑफ टी जो है ये एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सम दीज आर द कंडीशंस दैट शो यू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ इसके बाद हमारे पास और एक इसमें छोटा सा टर्म आता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो एक्स ऑफ बेसिकली एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम, दीज आर नथिंग बट द कंटिन्यूअस, sorry, but we can say these can be continuous rather than being discrete in nature, ठीक है। तो we have a amplitude spectrum of real valued function x of t, x of t अगर मेरे पास है तो इसका हमारे पास, शाबाश, it exhibits when the function is even symmetry, that means अगर आपके पास x of f किसके बराबर होगा, x of minus f के बराबर, that means when it follows the even symmetry, ठीक है। एंड जो फेज इसका, दैट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड जो इसका फेज होगा दैट मीन्स थीटा ऑफ एफ इट शुड बी ऑल्सो थीटा ऑफ माइनस एफ, दैट मीन्स जो फेज एंड मैग्नीट्यूड है इट विल फॉलो द इवन सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे कि हाउ वी कैन सॉल्व द फोर इक्वेशंस यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेंगे, ई दी पावर माइनस टी ई दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, जो हम पहले भी मतलब जितने भी हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा है सबसे पहले मैं यही एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ, बिकॉज अगर ये एग्जांपल आपको आई तो आपको यहाँ से दो चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ले लेंगे, लेकिन इसमें हम कहेंगे जो फंक्शन है इट इज़ सिंगल वैल्यूड, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, फंक्शन सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, शाबाश, यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, आपके पास जो फंक्शन है
दिस इज इन फॉलिंग ई दी पावर माइनस ए टी या अल्फा टी यू टी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स ऑफ टी है एंड यहाँ पे आपका जो है दिस इज टाइम टी। तो आपके पास जो फंक्शन है दिस इज राइज एंड फॉलिंग, फॉलिंग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। वी नो दैट सबसे पहले हम इस ut को सोल्यूशन में हम देखेंगे, सोल्यूशन अगर इसका निकालेंगे तो सबसे पहले ut को देखेंगे। व्हाट इज ut? दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड ut को अगर हम डिफाइन करेंगे इट इज इक्वल टू 1 व्हेन, जब आपका क्या है t इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 व्हेन इट इज मतलब एल्सवायर, ठीक है, जब आपका t लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नाउ आपके पास जो x ऑफ t है इट इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। ई दी पावर माइनस ए टी जो है दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे, शाबाश, x ऑफ t के बदले आपके पास अंदर जब आप x ऑफ ओमेगा लिखोगे, x ऑफ ओमेगा किसके बराबर होता है, f ऑफ यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ x ऑफ t। तो वो किसके बराबर होता था, शाबाश, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू सॉरी ई दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। तो अब आपके पास एक्स ऑफ टी की वैल्यू ऊपर गिवन है, एक्स ऑफ टी आपके पास गिवन है, तो यू कैन इजीली राइट हियर एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स ऑफ टी की वैल्यू डाल देंगे ई दी पावर माइनस ए टी यू टी इंटू ई दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, आप इसमें कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जब मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, सबसे पहले यूटी को डिस्कस करेंगे। आपका जो यूटी है, जो आपका एक्स ऑफ ओमेगा है, उसमें आपकी एक जगह पे यूटी भी है। यूटी हमने पहले ही बोला था यूटी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ ओमेगा जो है दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए ऑफ टी, ठीक है, इनटू यू टी कितना है 0, बिकॉज फॉर लेस देन फॉर टी लेस देन 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आपका जो t है इसमें आप वैल्यू डाल सकते हो, सॉरी हाँ, t अगर आपका लेस देन 0 तब आपका वैल्यू कितना है, शाबाश, 0 इंटू ई दी पावर माइनस ए टी डी टी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस ए टी, जब टी ग्रेटर देन 0 होता है तब आपकी वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 ई दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे ई दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, सॉरी। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो जब नेगेटिव वैल्यूज होते हैं तब आपका यू टी कितना बन जाता है, 0। जब पॉजिटिव वैल्यू है तो तब आपका टी यू टी बन जाता है 1। तो आपके पास ये टर्म तो बिल्कुल 0 बनेगी क्योंकि इसमें 0 टर्म है। तो आपका बन जाएगा ये 0 प्लस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस अल्फा टी, ए टी, इसमें मैं क्या करूँगा, टी को बाहर निकालूंगा, टी को बाहर निकालो, टी को बाहर निकालेंगे तो ए प्लस जे ओमेगा अंदर रहेगा इंटू डी टी। तो ये 0 यहाँ ये टर्म बन गई। तो आपके पास जो एक्स ऑफ ओमेगा आएगा, शाबाश, दैट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई दी पावर माइनस टी इंटू ए प्लस जे ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है। तो लिमिट देंगे इसमें, शाबाश, इंटीग्रेशन ले लेंगे और इसका लिमिट दे देंगे एक्स ऑफ ओमेगा। देखो सबसे पहले जब हम इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स टी की करते हैं, यहाँ ई दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं, वो ई दी पावर एक्स ही बनती है डिवाइडेड बाई दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स। तो हम जब इसकी डिफरेंशिएशन ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो वो बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, सॉरी 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, शाबाश। अंदर क्या रहेगा, ई दी पावर माइनस टी इंटू ए प्लस जे ओमेगा। तो लिमिट्स क्या आपके हैं, 0 टू इन्फिनिटी, सिर्फ टी का लिमिट देना है। तो एक्स ऑफ ओमेगा कितना बन जाएगा, शाबाश, 1 अपॉन, सॉरी ये माइनस टाइम्स है यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस था, तो ये माइनस 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा इंटू अंदर क्या रहेगा, शाबाश, जब आप इसको पहले 0 दे देंगे ई दी पावर ये 0 ए प्लस जे ओमेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, शाबाश, ये जब आप 0 वैल्यू दे देंगे तो यहाँ पे ये 0 माइनस, जब आप पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब इन्फिनिटी दे देंगे तो वो 0, क्योंकि ई दी पावर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है और ई दी पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये आपका ये बन जाएगा।
तो यहाँ पे 0 माइनस वन हो गया, तो आपका एक्स ऑफ ओमेगा कितना आएगा, 1/a+j ओमेगा। ठीक है, आपका एक्स ऑफ ओमेगा आ गया। नाउ अगर आप इसको मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी, शाबाश, एक्स ऑफ ओमेगा इज, आप यहीं तक कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 1/a+j ओमेगा इंटू, इसको रैशनलाइजिंग बाय डिनोमिनेटर करेंगे, j ओमेगा डिवाइडेड बाय a-j ओमेगा। अब आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा, तो ऊपर तो ये ऐसे रहेगा, a-j ओमेगा डिवाइडेड बाई a+b इंटू a-b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो j स्क्वायर -1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, तो a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो यहाँ पे, शाबाश, यू कैन राइट हियर a बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, शाबाश, फिर माइनस j इंटू ओमेगा बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ आप इसको इन द फॉर्म ऑफ इन पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? इन पोलर फॉर्म अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, पोलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई द पावर -j tan इनवर्स ऑफ, शाबाश, tan इनवर्स ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, जो आपका एक्स ऑफ ओमेगा है, दैट इज, अगर रियल पार्ट देखेंगे एम्पलीट्यूड का, तो दैट इज 1/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, तो अगर इसका फेज स्पेक्ट्रम देखेंगे, तो फेज स्पेक्ट्रम कितना आएगा, शाबाश, -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन ए, क्योंकि x बाई ए होता है, तो यहाँ x कितना है, ओमेगा, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ओमेगा बाई ए आ गया, तो आपका फेज स्पेक्ट्रम भी आ गया, और आपका, शाबाश, इसका फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, आप यहाँ पे एक फंक्शन जो आपके पास राइजिंग फॉलिंग फंक्शन है, एक्स ऑफ टी, तो यू कैन राइट हियर दिस लाइक दिस, तो ये आपका एक्स ऑफ ओमेगा बनेगा, ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, क्योंकि आपका जो फेज है tan इनवर्स ओमेगा बाई टी, तो यू कैन राइट इट हियर π/2, तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे लाइन एक, और इसका नेगेटिव साइड भी होगा, दैट मीन्स ये फंक्शन आपके 0 से क्रॉस होके आपका ऐसे बन जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो यहाँ पे ये π/2 है, ये 0 है, एंड जो आपका दिस इज इक्वल टू -π/2। ठीक है, तो ये फाई ऑफ ओमेगा बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेज एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ CTFT। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दे विल बी, the topic will be continued in the next lecture. Thank you.